کوئی مجھ کو ایک شخص بول سکتا اللہ کون ہے؟ آپ سے بھی چلتے پھرتے ایک غیر مسلم بھائی نے پوچھا اللہ کون ہے، کیا جواب دیجیے گا؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ادھر سے ادھر سے کوئی بھی؟ ہاں ابھی نہیں، یہ غلط آنسر ہے۔ اور کوئی؟ سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں تو یہ جواب ہوگا۔ کیا جواب ہوگا؟ جب آپ سے کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو بہت سارے آنسرز ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کون ہے تو قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کو جنتے نہیں ہے، کسی سے جنے ہوئے نہیں ہے، مطلب کسی کو پیدا نہیں کرتے اور کسی سے پیدا نہیں ہوئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ سورہ سب کو یاد ہوگا؟ یہاں پر یاد ہے نا؟ جس کو یاد نہیں ہے، کیونکہ نماز میں عام طور پہ ہم لوگ چھوٹا سورہ پڑھتے ہیں تو یہ یاد رہتا ہے، اس کا آپ ترجمہ صرف یاد کر لیجیے اور آپ کے پاس کتنے موقع رہیں گے دعوت کرنے کے لیے، کتنا موقع رہے گا جب ہم بس میں جاتے ہیں، جب ہم ٹرین میں جاتے ہیں، جب ہم فلائٹ میں جاتے ہیں، ہمارے بغل میں لوگ رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو بتانے کے بارے میں لیکن ہم نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ ہم نے کوئی بھی محنت نہیں کیا کام کے لیے، اپنے کام کے لیے، بزنس کے لیے۔ میں بھی بزنس مین ہوں، میں بھی بزنس کرتا ہوں، اب تجارت کرتا ہوں، تو اپنے کام کے لیے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، کتنا حساب کرتے ہیں، کتنا جوڑ اور گھٹاؤ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، ان کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی سورت کو یاد نہیں کیا ترجمہ کے ساتھ، ایک چھوٹی سی سورت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب میں یہاں پہ آؤں گا تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہاتھ اٹھائیں گے جب میں پوچھوں گا کہ ابھی کتنے کو یاد ہے یہ ترجمہ کے ساتھ؟ ہاتھ اٹھا سکتا تو ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے کہ کتنے کو یہ سورہ یاد ہے ترجمہ کے ساتھ؟ ایک، ادھر دکھ نہیں رہا مجھے، اور ادھر دو، تین۔ سوچ سکتے ہیں کتنا آڈینس ہے ابھی؟ آپ 4 5 6 7 7 ہوا، 8۔ اتنا مجمع میں آپ سوچ سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھ دے اللہ کون ہے تو صرف 7 اور 8 لوگ بول سکیں گے۔ آپ کیا ایسی حالت میں ہم لوگ اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے؟ ڈیسائیڈ آپ کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، ایسی حالت میں ہم لوگ اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے وہ ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرما رہے، بار بار فرما رہے کہ عورت اور مرد برابر ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو اللہ نے آپ کی ان کی دعا کو سن لی۔ اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40 میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اچھے عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اسلام میں مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہمیشہ یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ایکولز ٹو کا سائن نہیں ہے دونوں میں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں بھی میں اسپیکر ہوں، میں یہاں اسپیچ دے رہا ہوں، مقرر ہوں، تقریر دے رہا ہوں، آصف کیمرہ مین ہے، ہم لوگ دونوں برابر ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو یہاں لے آئیں گے اور مجھ کو وہاں ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ برابری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو آپ ایکسچینج کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے مرد اور عورت برابر ہیں، دونوں کو برابر اجر ملتا ہے جب دونوں کام کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں عورتیں آگے ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں مرد آگے ہوتے ہیں، لیکن اوور آل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے اور اس کو بہترین زندگی دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میری تقریر میں جو بیان کروں گا عورت اور مرد برابر ہے اور عورتوں کا کیا مقام ہے، کیونکہ عورتوں کا مقام اکثر ہم لوگ ویسٹرنرز کے حساب سے لکھتے ہیں، جو انگریز لوگ سوچتے ہیں کہ عورت جو بھی کرتی ہے مرد جو بھی کرتا ہے عورت کو وہ بھی کرنا ہے، تو وہ حساب سے ہم لوگ نہیں چلتے، عورت کو ہم لوگ اس حساب سے اسلام میں ہم لوگ اس طریقے سے عورتوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم لوگ اسلام میں کیا مانتے ہیں کہ مرد اور عورت مل کے ایک اچھے معاشرے کا نرمان کرتے ہیں، مطلب ایک اچھے معاشرے
अपनी तकरीर को मैंने 3 हिस्से में बांटा है, 3 ब्रॉड हिस्सा मैंने बनाया है। एक तो सबसे पहला इस्लाम में बेटी का मकाम, दूसरा इस्लाम में बीवी का मकाम, तीसरा इस्लाम में माँ का मकाम। तो 3 हिस्से में मैंने अपनी तकरीर को बांटा है। तो पहला हिस्सा क्या है? इस्लाम में बेटी का मकाम। साउंड कुछ दिक्कत है आप लोगों को सुनने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत है, इको कर रहा है कुछ, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा, ठीक है। और क्योंकि मेरा आवाज थोड़ा बदला तो बेस को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। और मेरी आदत है मैं चिल्ला के अपना लेक्चर नहीं करता हूँ, धीरे धीरे आराम से जिस तरीके से पढ़ाने वाला पढ़ाता है उस तरीके से मैं बोलता हूँ। तो पहला हिस्सा क्या है? इस्लाम में बेटी का मकाम। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, उस वक्त बेटियों को बुरी नजरों से देखा जाता था। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती थी तो वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 57-58 में कि जब उनमें से किसी को ये खबर दी जाती कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो गई तो उसका चेहरा सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। वो अपने लोगों से डरे फिरता है कि क्या करूँ, इस बेटी को जो ये पैदा हुई है इसको साथ, इस जिल्लत को साथ में लेके रहूं या इसको जमीन में गाड़ दूं। मतलब कि बेटी पैदा, आज भी हम लोग देखते हैं हमारे माशरे में भी बेटा पैदा हुआ तो हम लोग मिठाई बांटते हैं, अच्छे क्वालिटी का मिठाई बांटता है। और जब बेटी पैदा होती है तो क्या करते हैं? मिठाई बांटते हैं। अगर मिठाई बांटा भी तो थोड़ा कम क्वालिटी का बांटते हैं। बेटा पैदा होता है तो ज्यादा खुशी, बेटी पैदा होती है तो कम खुशी। ये इस्लाम इसको मना करता है। इस्लाम में अगर बेटी आपके यहाँ पैदा हो रही तो उस पे गम करना, उस पे अफसोस करना, उस पे गमगीन होना, ये भी मना है, ठीक है। और उस वक्त क्या होता था कि अभी के टाइम पे क्या है कि माँ के पेट में ही बच्चा को डिसाइड कर देख लिया जाता कि माँ के पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है, तो उसको उस हिसाब से मार दिया जाता है। इंडिया में लाखों बच्चों को और करोड़ों बच्चों को मार दिया जाता है ये जानने के बाद कि ये बेटियां माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान फरमाते वइज़ा सूरह तकवीर में सूरह नंबर 81 में कि जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया। एक जिंदा गाड़ी हुई लड़की से ये पूछा जाएगा क़यामत के दिन तो कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया जमीन के अंदर। सवाल क्या अल्लाह ताला पूछ रहे कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें किसने गाड़ा। अगर सवाल ये रहता कि तुम्हें किसने गाड़ा तो जवाब क्या रहता? मेरे माँ ने या मेरे बाप ने या उसी तरीके से उस डॉक्टर ने गाड़ा और केस बंद हो जाता वहां पर क़यामत के दिन। लेकिन सवाल क्या है? अल्लाह ताला फरमाए कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया। कौन से गुनाह थे जिसकी वजह से तुमको गाड़ दिया गया। और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, चाहे वो किसी धर्म पे नहीं भी मानने वाला हो, ये जरूर कहता कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे गोद में बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिनलेस होते हैं, उसका कोई भी गुनाह नहीं होता। छोटा बच्चा कोई गुनाहगार होता है? सिनलेस होता, छोटे मासूम बच्चे होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं उस छोटी गाड़ी हुई लड़की से कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा लेक्चर, मेरे तकरीर को पूरा सुन लिया। तो एक सवाल सही हुआ, सवाल गलत है क्योंकि मेरा लेक्चर अभी तकरीर खत्म नहीं हुआ। तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग जिन्होंने पूरा सुन लिया। तो जब अल्लाह ताला उस लड़की से पूछ रहे हैं कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया, तो उस लड़की का कोई गुनाह है? उस बच्ची का कोई गुनाह है? जाहिर सी बात है कोई गुनाह नहीं। तो सवाल गलत है क्या? नहीं, सवाल सही है। सवाल क्या है कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से मारा गया। कौन से गुनाह थे माशरे में, कौन से गुनाह ऐसे थे जिसके वजह से तुम्हारे बाप ने ये सोचा कि अभी ये बेटी है, इसको भी बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसके बाद दहेज भी देना है इसके साथ साथ में और इसके सब चीज करना है, तो उसको उतने खर्चे को कम कर दिया जाता है। अभी इसको मार के अपने पॉकेट में पैसे को रख दिया जाता है। तो भले ही आपने किसी बच्ची को मारा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस सिस्टम में, उस माशरे के और उस सिस्टम को सपोर्ट करते, दहेज के सिस्टम को सपोर्ट करते, जिसमें लड़कियों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिससे लड़कियों के माँ बाप के ऊपर इतना जुल्म बनाया जाता है कि दूसरा देखने वाला शख्स ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरी बेटी नहीं होती। दूसरा देखने वाला शख्स ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरी बेटी, इसको इतना तकलीफ हो रहा है, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरी बेटी नहीं होती। तो उस माशरे, उस सिस्टम को अगर आपने सपोर्ट किया होगा, दहेज के सिस्टम
को और सारा का सारा जो सिस्टम बनाया गया है, तो भले ही आपने किसी बच्ची को नहीं मारा होगा, लेकिन शायद कि कयामत के दिन उस बच्ची की उंगली आपकी तरफ हो जाएगी, जिसको अल्लाह ताला पूछ रहे कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से मारा गया, कौन से गुनाह माशरे में थे जिसके वजह से तुम्हारे बाप ने सोचा कि इसको अभी बड़ा करके अभी इसको सारा का सारा खर्चा होगा इसके पीछे, इससे अच्छा इसको अभी मार दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह से के वजह से मारा गया। पहले जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वाक़े को अगर आप पढ़िएगा तो इवन 5 से 6 साल की लड़की को भी दर्दनाक तरीके से मार दिया जाता। उसका खुद का बाप उसको ले जाता है मक्का के बाहर में और खुद वहाँ गड्ढा खुदवाता है, उससे भी खुदवाता है और उसके बाद खुद उसको मार देता है। अभी का दौर आप सोचिएगा अभी नहीं दौर बदल चुका, नहीं, आप जाके देखिए पूरा का पूरा टीवी शोज है जिसमें आज के दौर के डॉक्टर, जिसको हम लोग सिविलाइज बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, वो 2 से 3 हजार रुपए के लिए आज भी वैसी उसी तरीके से बच्चों को मारते हैं जिस तरीके से उस वक्त बच्चों को मार दिया जाता था। आज भी वो लोग मौजूद है, ऐसा मत समझिए कि ये 1400 साल पुराना किस्सा है। आज भी वो लोग मौजूद है जो बच्चियों को मार दिया जाता था। एक शो है टीवी पे आता था, उसमें दिखाया जाता था रिकॉर्ड, उसमें दिखाया गया कि राजस्थान का एक वाकया दिखाया जाता था जिसमें डॉक्टर बच्ची को पता है कि बच्ची है, उसके बाद भी वो 2 से 3 हजार रुपए के लिए सिर्फ उसको मार देते हैं। 2 से 3 हजार के लिए डॉक्टर जिसको बोला जाता है पढ़े लिखे जान बचाने वाले लोग। तो इस्लाम में ये करना सख्त मना है, अपनी बच्ची को, बेटी को या बेटा को भी मारना सख्त इस्लाम में मना है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मना ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी पैदा हो तो उसको मारना नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते सुनन इब्न माजा में वॉल्यूम नंबर 3 किताबुल अदब हदीस नंबर 3669 में कि जिसके यहाँ भी 3 बेटियां हो, अल्लाह के नबी फरमाए कि जिसके यहाँ भी 3 बेटियां हो और वो उस पे सब्र करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है और उसकी अच्छी तरबियत करता है, तो वो बेटियां जहन्नम से उसकी आड़ होगी, मतलब जहन्नम में जाने से वो बेटियां उसको रोकेगी। उसी के बाद और एक हदीस है सुनन इब्न माजा वॉल्यूम नंबर 3 बुक ऑफ अदब हदीस नंबर 3670, अल्लाह के नबी उसमें फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके यहाँ भी 2 बेटियां, वहां पे 3 बेटियां थी, यहाँ पे 2 बेटियां हो, जिसके यहाँ भी 2 बेटियां हो तो वो उसको जन्नत में लेके जाएगी। वो उसकी अच्छी से परवरिश करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, तो वो बेटियां 2 बेटियां उसको जन्नत में